Today I have a very interesting thing to share बहुत ही with all of रुचात्मक you. संदेश आज मैं लाया हूँ आपसे बांटने I के want to share with you 5 lessons of life. लिए। जिंदगी के 5 सीख। 5 lessons of life. जिंदगी के 5 सीख। This is the lesson the whole world is learning. और ये वो बातें हैं जो सारी दुनिया सीख रही है। Okay, these are the 5 lessons we need to learn. और ये वो 5 सीख है जो हमें सीखना है। If you learn this 5 lessons, you will be very, very successful. अगर ये 5 बातें आप सीख ले तो आप अपनी जिंदगी में बहुत अधिक उन्नति These पाओगे। are 5 truths 5 ऐसी सच्चाइयां हैं which can lead you to great heights. जो आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। The first truth, पहली सच्चाई, truth number 1. पहली And सच्चाई। whatever I say, you need to write it और down. जो कुछ मैं कहता हूं आप उसे लिखे या मोबाइल में टाइप करके रखें। Many years before, somebody told me like this: thoughts are very frail; it disappears very fast. और कई सालों पहले किसी ने मुझसे ये कहा, जो आपकी सोच है ये बहुत ही कमजोर होती है, बहुत जल्दी ये गायब हो जाती है। That's why we need to record those thoughts. और इसी कारण इन विचारों को आपको रिकॉर्ड कर कर रखना When you है। record those thoughts, it stays with you. जब आप इसे रिकॉर्ड कर कर रखते हैं तो ये विचार आपके साथ ही रहते हैं। Now, when you record these thoughts, you can just go back and see these thoughts and just relive it. और जब आप इसे लिख कर रखते हो तो आप फिर से जाकर इसे देख सकते हैं और फिर से उसमें जीवित रह सकते हैं। Otherwise, it always, oh, very nice message, but I don't know what was the message. और ये हमेशा होता है कि लोग कहते हैं कि बहुत ही अच्छा संदेश था लेकिन मुझे याद नहीं क्या So today we are learning 5 lessons of life. तो आज हम सीख रहे हैं 5 वैसी सीख जीवन की। The first lesson. पहली सीख। We always learn lessons. हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। We always learn lessons. हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं। Our life itself is a big lesson. हमारी जीवन ही सबसे बड़ी एक सीख है। Everything in life is a lesson. हर एक बात जीवन में जो होती है वो एक सीख होती है। And we are students, all of us are students of this life. और called. इसी जीवन के हम सब विद्यार्थी हैं। We are in various stages. हम कई अलग अलग श्रेणियों में हैं। Some are in kindergarten. कुछ लोग बहुत ही किंडरगार्टन में हैं। Some are in primary school. कुछ लोग प्राइमरी स्कूल कक्षा Some are तक in पहुंच चुके colleges. हैं। कुछ लोग कॉलेज तक पहुंच Some चुके are हैं। above that. कुछ लोग उसके ऊपर पहुंच चुके हैं। Okay, we all are students in various stages. हम सब विद्यार्थी के तौर पर है जीवन के अलग अलग श्रेणियों में। Sometimes people make childish mistake. कई बार ऐसे होता है कि लोग बहुत ही बचपना से भरा हुआ गलतियां करते हैं। Why? क्यों? They are still children. वो अभी भी बच्चे हैं। Okay? They are not learning lessons. They are already there in kindergarten. और वो ऐसे सीख नहीं रहे हैं, वो अभी भी किंडरगार्टन में हैं। Okay? We should always be willing to learn the lesson. हम सब हमेशा कुछ सीखने के लिए तैयार रहने चाहिए। We are all the time willing to learn the lesson. और Not हमें some lesson. Learn the lesson of life. और हम जिंदगी की उस सीख को सीखने के लिए हम तैयार रहते हैं। All the time ready. हमेशा तैयार। Consider you go through a negative situation. मान लो एक नकारात्मक परिस्थिति से आप गुजरते हो। You learn a lesson from that situation. उस परिस्थिति से आप कुछ सीख लेते हो। How to win those negative people. और कैसे वो नकारात्मक लोगों को जीता जाए। And we should never be afraid of learning any lesson. और कभी भी किसी भी सीख को सीखने से आप डरिए नहीं। Many people are not ready to take up a challenge कई लोग कुछ चुनौती लेने से अब तक तैयार नहीं है अपने जीवन में। because they are afraid to take that decision. क्योंकि उस निर्णय को लेने के लिए, उस चुनौती को लेने के लिए वो डरते हैं। They are not ready for that. वो तैयार नहीं है उसके लिए। They are afraid that people will say something. वो डरते हैं कि लोग कुछ कहेंगे। I may lose money. मैं शायद पैसे खो दूंगा। What will happen to my reputation? मेरी पहचान को क्या होगी? They are afraid. वो डरते हैं। So you should be bold enough to learn a lesson. आप में इतना धैर्य जरूर होना चाहिए कि आप एक सीख को सीख ले। Let me read a word. एक वचन हम पढ़ेंगे। Proverbs chapter 1 verse 5. नीति वचन 1:5। Proverbs chapter 1 verse 5. नीति वचन पहला अध्याय 5वां वचन। Your wise man will hear and increase learning. कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या को बढ़ाए। Man of understanding will attain wise counsel. और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। Who is a wise man? और कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? Who is a wise man? बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? Now wise man doesn't look like a wise man. और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो कुछ दिखता नहीं है बुद्धिमान के Some समान। people they think by having beard and a big shindy, people think they are wise people. लोग सोचते हैं कि लंबी दाढ़ी हो, लंबी सी शेंडी हो तो हम बहुत बुद्धिमान बन जाते हैं। Okay?
It doesn't happen that ऐसे way. नहीं होता है। Who is a wise man? बुद्धिमान व्यक्ति Who is a कौन wise है? man? ऐसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है? A wise man will hear. एक ज्ञानी व्यक्ति पहले तो वो सुनता है। Wise man will hear. ज्ञानी व्यक्ति पहले तो कुछ बोलो मत मुझे कुछ बोलो मत, मैं कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं हूं. Have you seen this dialogue? क्या आपने ऐसे डायलॉग सुने हैं? Don't tell them who they are. आप बोलो नहीं कौन है वो, Huh? Don't tell them anything. उनको कुछ बोलो नहीं, They are not ready for anything. वो तैयार नहीं है किसी चीज के लिए। A wise man will hear, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सुनता है and the wise man will increase. और वो अपनी ज्ञान में बढ़ता है। A wise man will hear, और ज्ञानी व्यक्ति सुनता है and a wise man will increase. और ज्ञानी व्यक्ति वो बढ़ता है। How many of you are increasing? कितने लोग बढ़ते जा रहे हैं? Tell me how many of you are increasing in your आप life? मुझे बताएं कि कितने लोग बढ़ते जा रहे हैं? What is your value today? आपकी मूल्य क्या है आज? तुमको उठा के बेचेगा, कितने में बेच सकता हूं मैं? Are you increasing your value? क्या आप अपने मूल्य में बड़े हो? Or you are just thinking everything is okay with me? क्या आप ये सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक है मेरे लिए? कुछ लोग सोचते हैं 40 में कैसा रिटायर होने का. ये तुम मरने का क्या? Retired people die fast. जो लोग Retired रिटायरमेंट people लेते become sick very fast. जो लोग रिटायरमेंट लेते हैं वो बहुत जल्दी मरते हैं, बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। Your wise man will hear. एक ज्ञानी व्यक्ति पहले सुनता है Your wise man will increase. और ज्ञानी व्यक्ति बढ़ते जाता है। Ask yourself a question every day. Am I increasing? अपने आप से ये सवाल रोज पूछे, क्या मैं बढ़ते जा रहा Am I हूँ? increasing? क्या मैं बढ़ते जा रहा हूँ? I tell you, my son is increasing every day. मैं आपसे कहता हूँ मेरा बेटा जो है वो रोज प्रतिदिन बढ़ते He is जा रहा है। learning mathematics every वो day. गणित को रोज प्रतिदिन He सीख is रहा है। writing English every day. वो रोज अंग्रेजी भाषा को लिखता He है। is studying technology every day. वो रोज टेक्नोलॉजी सीख रहा है। So children, they are increasing. जो बच्चे हैं वो रोज बढ़ते जा रहे हैं। And after some time, और we कुछ think समय के बाद we know too much. और हमें लगता है कि हमें बहुत ज्यादा पता है। Wise man will increase. लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति वो बढ़ते No जाता matter है। what is your age, चाहे आपकी उम्र कुछ भी क्यों your ना हो, wise man will एक increase. ज्ञानी व्यक्ति वो निरंतर man of बढ़ते जाता है। understanding. समझ का एक व्यक्ति। Some people are men of misunderstanding. कुछ लोग केवल लोगों को गलत समझते हैं। See, understanding should be attained. और ये जो समझ है इसको हमें हासिल करना है। Understanding should be attained. और ये समझ जो है उसे हमें हासिल करना है। Yes, that attainment is very important और ये for understanding. हासिल करना ये बहुत जरूरी है समझ को पाने के लिए। It doesn't come in the beginning. वो ऐसे शुरुआती में नहीं आता, It takes time. समय लगता है। So a man of understanding will attain something called wisdom, wise counsel. और जो समझदार व्यक्ति है, समझ जिसके पास है, वो हासिल करता है इस उपदेशों को। What are you increasing in? और आप किस चीजों में बढ़ते जा रहे हो? What are you increasing in? आप किन चीजों में बढ़ते जा रहे हो? If you're not increasing, अगर आप नहीं बढ़ रहे हो, probably you are not learning life properly. शायद आप जीवन को सही तरह से नहीं सीख रहे हो। Proverbs 12. नीति वचन 12 उसका The 5। way of a fool is right in his own eyes, but he who heeds counsel is wise. धर्मियों की कल्पनाएं न्याय ही की होती है, परंतु दुष्टों की युक्तियां छल की। Hey, fools think जो मूर्ख है वो ये they are सोचते right हैं, all the time. वो हम सोचते हैं कि मैं हमेशा सही हूं। Is Proverbs is the Solomon, the wisest man, saying something? ये नीति वचन लिखने वाला राजा सुलेमान जो था, क्या वो सही बातें कह रहा है? Found a man who thinks he is right all the time? क्या आपने ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है जो सोचता है कि वो हमेशा सही है? He is dangerous. वो बहुत ही खतरनाक है। I tell you, fools are dangerous. मैं आपसे कहता हूं जो मूर्ख लोग होते हैं बहुत ही खतरनाक होते If हैं। you go with fools, अगर आप मूर्ख के साथ चलोगे, Bible says the fools first finish their neighbor. बाइबल ये कहता है जो मूर्ख लोग होते हैं पहले तो अपने पड़ोसी को ही खत्म कर लेते हैं। So if you are born with a fool, you are in danger. अगर आप किसी मूर्ख के साथ जी रहे हो तो आप बहुत ही खतरे में हो, Because they think they are all the time right. क्योंकि उन्हें लगता है कि वो हमेशा सही है। Okay. Then he who heeds counsel is wise. लेकिन जो लोगों की सलाह को सुनता है वो ज्ञानी है। Okay. Now one more word. एक और वचन, Proverbs 18:2. नीति वचन A fool has no delight in understanding. और जो मूर्ख होता है उसे कोई भी समझ की बातों में कोई भी रुचि नहीं रहती। You know what is delight? क्या आप समझते हो तो आनंद लेना किसे कहते हैं? Delight has a synonym.
और इसका According एक to- समानार्थी शब्द है It's called ice cream. और वो है आइसक्रीम। How many of you like ice cream? कितने लोगों को आपको आइसक्रीम पसंद है? Huh? Even dead people like ice cream. मुर्दे लोगों को भी आइसक्रीम पसंद है। Everybody likes ice cream. सभी को आइसक्रीम पसंद है, Because even without teeth we can eat that. क्योंकि दांत ना हो तो भी हम खा सकते हैं। Old people can eat, children can eat, all can eat ice cream. बूढ़े बुजुर्ग भी खा सकते हैं, It's बच्चे called भी खा सकते हैं, delight. सारे सकते हैं। इसका मतलब है Delight. आनंद इसमें लेना। What is your delight? आप किस चीजों में आनंद लेते हो? What is your delight? किन चीजों में आप आनंद Your लेते हो? delight is an understanding. क्या समझ में आप आनंद लेते हो? That means you need to hear. और उसका मतलब है आपको सुनना You need to पड़ेगा। hear to criticisms. और जो आपकी निंदा करते हैं उनकी बातों को सुनना होगा। Probably somebody will tell you are not looking good. और हमेशा कोई कहता है कि तुम अच्छे नहीं दिखते हो। Are you looking through that words? क्या उन वचनों के पार आप देख सक रहे हो? Because we always learn lesson. क्योंकि हम हमेशा कुछ ना कुछ सीख पाते You हैं। talk about me, I will learn a lesson. आप मेरे बारे में कुछ बात करो, मैं उनमें से कुछ You सीख look लूंगा। at me, I learn a lesson. आप मेरी तरफ देखो एक बार, मैं उसमें से कुछ सीख You लूंगा। comment about me, I learn a lesson. मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें कर दो तो मैं उसमें से कुछ सीख लूंगा। Then you are safe. और आप सुरक्षित हैं, Because you are not underestimating anything. क्योंकि आप किसी को भी कम नहीं समझते। Okay, at no point anyone can say, I know it all. और कोई भी पल पे कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सारी बातों को जान चुका हूं। We are eternal students. और हम अनंत काल के लिए विद्यार्थी We हैं। are eternal students. हम अनंत काल के लिए विद्यार्थी हैं। However, whatever may be your age, you are Cha- still a student. चाहे आपकी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, आप एक विद्यार्थी हो। The day your education is over, according to God, He will take you. और जिस दिन परमेश्वर के मुताबिक आपके पढ़ाई पूर्ण हो चुकी है, उस दिन परमेश्वर आपको उठा लेगा। Just because you are alive, please understand, you are a student. और क्योंकि आप जिंदा हो आज, इस बात को समझे कि आप एक विद्यार्थी हो। Are you understanding क्या आप something? कुछ बातों को सीख रहे हो? Tell your neighbor, अपने I पड़ोसी am से कहे, learning something. मैं कुछ सीख रहा हूं, I am learning मैं something. कुछ सीख रहा I am हूं, learning life. मैं जीवन के विषय I am सीख रहा 50 हूं। years old, now I am learning life. मैं 50 साल का हो चुका हूं, लेकिन मैं जीवन अब I am सीख रहा 60 हूं। years old, I am still learning life. मैं 60 साल का हो चुका हूं, लेकिन मैं अब भी जीवन I सीख am रहा हूं। 80 years old, still I am in the learning मैं- stage, I am learning life. मैं 80 साल का हो चुका हूं, लेकिन अब भी मैं जीवन सीख रहा हूं। Nowhere anyone will ever come that I know it all. और I know it all. और That मैं सब stage कुछ जानता will हूं। come. Okay, let's read another words. और अगला वचन हम पढ़ेंगे, Okay, Psalm 119 verse 7. बन सकता है 119 7वां वचन। See, I learn your righteous judgments. मैं तेरे धर्मी नियमों को सीखूंगा। Hey, God is a righteous judge. परमेश्वर धर्मी न्यायाधीश है। He is a righteous judge. वो धर्मी न्यायाधीश है। Psalm 7, भजन संहिता 7 7:11. उसका 11वां वचन। God is a just judge and God is angry with the wicked every day. परमेश्वर धर्मी और न्यायी है और वो प्रतिदिन दुष्ट लोगों से क्रोधित रहता है। Who God is? कई लोग परमेश्वर कौन है यही नहीं जानते, Because they don't know who God is, they don't know how to behave. और क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है, तो वो नहीं जानते कि बर्ताव कैसे करना है। But they are very godly, they are very religious people, but they don't know who God is. वो धर्म का पालन करने वाले लोग हैं, बहुत ही दैविक जीवन बिताने वाले लोग हैं, लेकिन नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। It is said God is a just judge. और यहां पर लिखा है कि परमेश्वर धर्मी न्यायाधीश है। God is a just judge. परमेश्वर धर्मी न्यायाधीश है। Tell your neighbor, God is a just judge. पर अपने पड़ोसी से कहे कि परमेश्वर धर्मी न्यायाधीश है। God is not an unjust judge. परमेश्वर कोई अधर्मी नहीं है और न्यायाधीश नहीं है। There are many judges. कई सारे They are not न्यायाधीश just, ऐसे they are होते हैं, unjust. उनमें कोई न्याय नहीं है, अन्याय भरा हुआ We है। hear about so many judges. कई सारे No न्यायाधीशों के justice. बारे में हम सुनते हैं जिनमें कोई न्याय ही नहीं है। But God is not like that. लेकिन God is परमेश्वर very ऐसा just. नहीं है, He is a just वो judge. न्याय के साथ काम करने वाला So it is न्यायाधीश है। better to be with God. तो आप बेहतर होगा कि He आप will do परमेश्वर के साथ justice जुड़े, for वो आपके लिए न्याय को लाएगा। How many of you have undergone injustice? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे जीवन में अन्याय हुआ है? Because somebody did injustice to you. क्योंकि किसी ने आपके जीवन में अन्याय किया है, You are hurt. आपको चोट लगी है। I tell you, मैं you आपसे don't कहता know हूं, God. आप परमेश्वर को नहीं If you are जानते। hurt,
you don't know God. अगर आपने चोट खाई है तो आप परमेश्वर को नहीं जानते। People have been unjust to me. लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है। Today I am crying. I am so hurt. आज मैं रोता हूं, मैं कितना चोट मुझे पहुंची है। God is a righteous judge. परमेश्वर धर्मी न्यायाधीश है He will do justice for me. और वो मेरे लिए न्याय करवाता है। Let's turn to Psalm 37. भजन संहिता 37। We need to know who God is. हमें जानना What God जरूरी है कि परमेश्वर कौन है। Psalm 37, भजन संहिता 37 verse 6. 6वां वचन। He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as noonday. और वह तेरा धर्म ज्योति के नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के नाई प्रकट करता है। Look at him. देखो, He shall bring forth your righteousness as the light, your justice as the noonday. वह तेरा धर्म ज्योति की नाई और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के न्याय प्रकट करेगा। How can you ever say they did injustice to me? आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि उन्होंने मेरे साथ अन्याय किया? How can you say? आप कैसे कह सकते हो? Is your God dead? क्या आपका परमेश्वर मरा हुआ है? Our actions, our words should be right. हमारी जो क्रिया है, जो हमारे शब्द है, वो सही होने I'll चाहिए। tell you something. मैं आपसे No कुछ one कहूंगा। can do injustice to you. कोई भी हमारे साथ अन्याय नहीं कर सकता। God will bring your justice as a noonday. परमेश्वर तुम्हारा न्याय एक दोपहर के समान लेकर आएगा। Many people become so reactive. बहुत लोग ऐसे एकदम रिएक्टिव बन जाते हैं। Huh? They sit and cry. अरे वो लोग ऐसा किया, वैसा किया. Huh? वो हमेशा रोते पैसा रहते हैं लेके कि गए। ऐसे हुआ वैसे हुआ। Nobody can do injustice to you. कोई भी आपके साथ अन्याय नहीं Yeah, कर सकता। definitely. If you don't have God, they can take you also. और निश्चित तौर पर अगर आपके जीवन में परमेश्वर नहीं है तो वो आपको भी उठा लेंगे। That's why he says in Psalm 119 verse 7, I learn your righteous judgments. और इसलिए भजन संहिता 119 उसका 7वें वचन में लिखा है कि मैं तेरे धर्मी न्याय को सीखूंगा। My friends, मेरे you मित्रों, should learn the righteous judgments of God. आपको परमेश्वर के न्याय से भरे हुए धर्मी न्याय को सीखना है। Have you heard people say, where is God? क्या आपने सुना है लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है? Get away from them. इन लोगों से दूर रहे। They will not only be destroyed, they will destroy you also. वो खुद का नाश तो कर ही रहे हैं, वो आपका भी कर I देंगे। am talking about believers, huh? मैं विश्वासियों के बारे में बात कर रहा हूँ, beautiful believers. जो I am talking. सुंदर दिखने वाले विश्वासी हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। Yeah, many people, they trust God and they talk like this only. बहुत से लोग परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और हाँ। ऐसी बातें करते हैं। Here is a man who says, I learn the righteous judgments of और God. यहाँ पे एक व्यक्ति है जो कहता है कि मैं धर्मी नियमों So को that परमेश्वर के means- सीखूंगा। You need to learn the righteous judgment. If you don't learn, you will not know only. उसका अर्थ है कि आपको सीखना होगा, क्योंकि अगर आप सीखोगे नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे। Let's read one more verse, verse 67. Psalm 119, verse 67. It says, before I was afflicted, I went astray, but now I keep your word. और उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन में को मानता हूँ। हिंदी में कैसा है? उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। मैं भटकता रहा, ये मेरा ट्रांसलेशन है। हाँ? इसके वजह से मुझे मार खाने पड़ा, अभी मैं सीख लिया। वो ऐसा ही लिखा है। Many times it is true. कई बार ये सत्य है, Many times it is true. कई बार ये सत्य ही है। Though God is not to punish you, परमेश्वर यहाँ पर आपको सजा देने के लिए नहीं है, He is a father. वो एक पिता है। He is not there to punish you and all. वो आपको दंड देने के लिए नहीं है। Definitely, when you do things which is not right, it will punish you itself. और जब कोई चीज आप गलत करते हो तो वो चीज आपको दंड देता है। Definitely, now you are very curious. You want to put your hand in every hole. You put in that hole, you will be punished. अगर आप मान लो आपको बहुत व्याकुलता है और आप यहाँ पे कोई प्लग के सॉकेट में जाके उंगली करते हो तो आपको दंड तो मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। मिलेगा। बहुत लोग को ऐसा दंड मिलता है, फिर वो सीधा लाइन में आता है, उधर तक वो लाइन में नहीं आएगा। So that's what it says, you know. I was afflicted when I went astray, but now I keep your word. और इसलिए यहाँ पर लिखा है कि पहले मैं दुखित था जब मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। Yes.
And see, in 71, what he says. It is good for me that I am afflicted. I will learn your statutes. और 71 वचन में लिखा है कि मुझको दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं. Okay? We always learn lessons. हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं. Truth number 2. दूसरी सच्चाई, We don't do mistakes, but we learn lessons. हम गलतियां नहीं करते हैं लेकिन हम कुछ बातें सीख लेते हैं. Okay? We are not doing mistakes. We are actually making lessons. We are learning lessons. हम कोई गलतियां नहीं कर रहे हैं लेकिन अपनी सीख को हम सीख रहे हैं. Actually, mistakes are stepping stones for success. और सत्य की बात यह है कि जो गलतियां हैं वो ऐसे कदम बनते हैं आपके जहां पे आप कदम बढ़ाकर उन्नति की ओर बढ़ते हो. Okay, Psalm 119, verse 71. बन सकता है 119 उसका 71वां It वचन. is good for me that I have been afflicted, that I may learn your statutes. मुझको दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं. So it is good that problem comes. तो ये बेहतर अच्छी बात है कि कोई परेशानी आ गई. Many people, they have lot of problems. कई लोगों के जीवन में बहुत सारी परेशानी है. Financial problem, आर्थिक परेशानी, relationship problem, रिश्तों में परेशानी, office problem, और दफ्तर में परेशानी, house problem, घर पर परेशानी, in-law problem, और सास ससुर के साथ Outlaw परेशानी, problem. बाहर के साथ प्रॉब्लम. We don't do mistakes, we learn lessons. हम गलतियां नहीं कर रहे हैं, अपनी सीख को सीख रहे हैं. Because mistakes are stepping stones for success. क्योंकि ये जो गलतियां हैं ऐसे पत्थर बनेंगे जो आपको उन्नति की तरफ बढ़ाते जाएंगे. Okay, tell your neighbor, mistakes are stepping stones. अपने पड़ोसी से कहे कि जो गलतियां हैं वो ऐसे पत्थर बनेंगे जिन पर आप पांव रखकर अपनी उन्नति की तरफ बढ़ोगे. Okay? Right. Psalm 119, verse 73. Your hands have made me and fashioned me. Give me understanding that I may learn your commandments. बन सकता है 119 उसका 73वां वचन. तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं. See, understand this very carefully. ध्यान से इस वचन को समझे. Where we do the mistake. हम कहां गलती करते हैं? We do the mistake in the statutes. और जो विधियां हैं उन पर हम गलतियां करते हैं. What is the statute? और ये सिद्धांत, इसका अर्थ क्या है? Very important. ये बहुत When महत्वपूर्ण you है. violate a statute, you will go through affliction. जब आप किसी सिद्धांत को तोड़ते हो तो आप दुख की अवस्था से गुजरते हो. What is the statute? और ये सिद्धांत का अर्थ क्या है? Okay, are you with me? You are क्या आप मेरे understanding what साथ I'm हो, मेरी saying? बातों को Okay, समझ रहे हो? statute is the rule of your inner man. और ये सिद्धांत का अर्थ है कि आपके अंदरूनी मनुष्यत्व के जो कायदे हैं. Statute is a moral law for us. और जो सिद्धांत है ये हमारे लिए सही एक न्याय है. So that is why in 71 he says, I learn your statutes. और इसीलिए 71वें वचन में लिखा है कि मैं तेरे विधियों को सीख सकूं. And in 73 he says, I learn your commandments. और इसलिए 73वें वचन में लिखा है कि मैं तेरे आज्ञा को भी सीखूंगा. Now commandment is also a statute. अब ये जो आज्ञा है ये भी सिद्धांत में आता है. It teaches you how to have morality. वो आपको सिखाता है कि कैसे सही मन को पाए, जो सही और गलत को पहचाने. For example, there is a उदाहरण, commandment. एक Thou shall not steal. एक आज्ञा ऐसी है कि आप चोरी न करे. It's a statute. ये एक सिद्धांत है. Thou shall not tell lies. आप झूठ न कहे. Thou shall not do adultery. आप व्यभिचार न करे. It says. ये कहता है. And you have to walk in that way only. और इसी रास्ते आपको चलना है. Thou shall not do adultery means, can I flirt? और आप व्यभिचार न करें इसका मतलब क्या है कि आप कोई ऐसे व्यभिचार से बड़े बातें कर सकते हैं. There is no question. इसमें कोई सवाल ही नहीं है. Thou shall not do adultery. आपको व्यभिचार नहीं करना है. Thou shall not steal. आपको चोरी नहीं करना है. That's it. बस इतना ही. The moment you violate this, you will be afflicted. और जैसे ही आप इन सिद्धांतों को तोड़ते हो तो आप निश्चित तौर में दुख सहोगे. Affliction can be anything. और ये दुख कोई कुछ भी हो It सकता can है. be inside in your flesh.
ये शायद आपके देह में हो सकता है, It can be in your money. आपके पैसा आर्थिक स्थिति में हो It सकती can be है, in your relationship. आपके रिश्तों में हो सकता है, It can be in your family. आपके परिवार में हो सकता It है, can even attack your children. या आपके बच्चों पर भी घात कर सकता है। Always understand इस this. बात को हमेशा समझे। A statute is something you need to learn. और ऐसी विधियां या सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको सीखना है। If you don't learn it, you will be afflicted. अगर आप इसे नहीं सीखोगे तो आप इसका दुख सहोगे। That's why I want to say in a nice way, you don't do mistakes, you learn your lesson. और इसलिए अच्छी भाषा में मैं आपको कह रहा हूं कि आप गलतियां नहीं करते, लेकिन Tell आप your कुछ बातों neighbor. को सीख रहे हो। You are learning lessons. अपने पड़ोसी को देखकर कहो तुम कुछ बातों को सीख रहे हो। If you want to live king size, अगर आपको एक राजा के समान जीना है, you need to learn lesson from every situation. आपको हर एक परिस्थिति से बातों को सीखना है। From every situation, you हर need एक परिस्थिति से to seek your lesson. आपको अपना सीखना है। The moment you start to blame the situation, जैसे ही आप उन परिस्थितियों को दोष दोगे, then you are not learning any lesson. तो फिर आप कुछ सीख नहीं पाओगे। You are actually giving, if you are blaming the situation. अगर आप उन परिस्थितियों को दोष दे रहे हो, Some people, they blame their parents. कुछ लोग अपने माता पिता को दोष देते Some हैं, people blame their brothers and sisters. कुछ लोग अपने भाई बहनों को दोष देते हैं, Some people blame their school. कुछ लोग अपने जो पाठशाला है उसे दोष देते हैं, They blame their teachers. अपने शिक्षकों को दोष देते हैं। Some holy people, they blame their pastors also. कुछ पवित्र लोग ऐसे हैं जो अपना सारा दोष वो अपने पासबानों को देते हैं। Let me tell you, मैं आपसे कहूंगा, we don't do mistakes, we learn lessons. हम गलतियां नहीं करते बल्कि हम सीख लेते हैं। Every opportunity, I learn a lesson. हर एक मौके को मैं अपना सीख लेता हूं। Tell your neighbor, every opportunity you learn a lesson. अपने पड़ोसी को देखकर कहो कि हर एक मौके में से आप अपनी सीख लोगे। Third truth, और तीसरी सच्चाई, a lesson is repeated until it is learned. और एक सीख जो है वो बार बार दोहराना पड़ता है जब तक कि आप उसे सीख ना लो। Until you learn the truth, you have to repeat it. जब तक आप उस सच्चाई को सीख नहीं लोगे, आपको बार बार उसी से गुजरना होगा। A child who doesn't learn the lesson is made to repeat the year. अगर एक बच्चा होता है वो उसका अपने पाठ वो नहीं समझ पा रहा, सीख नहीं पा रहा, तो फिर से वो वर्ष उसको दोबारा बैठना पड़ेगा। Unless you learn the lesson, you can't go to the next level. जब तक आप अपनी सीख ना सीख ले तब तक आप अगले श्रेणी पर नहीं जा सकते। Some people are wondering, कुछ लोग ये सोच रहे हैं, why I am in this level? मैं इसी स्थिति में क्यों हूं, Why my life is stagnant? मेरे जीवन में ऐसे फंसा हुआ क्यों है। Huh? Unless you learn the lesson, you जब can't go to the तक next आप अपनी सीख को नहीं सीख लेते, आप आगे नहीं बढ़ने वाले। level. Whichever you may be. और चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, You may be a student चाहे आप एक विद्यार्थी हो, or an employee या तो कहीं पर नौकरी कर or रहे an हो, employer. या तो आप किसी को नौकरी दे रहे हो, If you're not learning the lesson, लेकिन अगर आप अपनी सीख नहीं सीख पाते, you can't go to the next level. आप अगली श्रेणी पर नहीं पहुंच Huh? पाओगे। Tell your neighbor, you अपने need पड़ोसी to से learn कहो, lesson. तुम्हें अपनी सीख को सीखना है, You need to learn the lesson. तुम्हें अपनी सीख को सीखना है। Some people have, I know a lot of young people, they want good jobs. और मैं कई जवानों को जानता हूं, वो अच्छी नौकरी पाना चाहते हैं। Huh? Pastor, good money, good job. बहुत अच्छा पैसा, अच्छी नौकरी, Sometimes you don't get good jobs. लेकिन कई बार ऐसे अच्छी नौकरी हमें मिल नहीं पाती। What is the truth? और सच्चाई क्या है? Very simple. You have not learned the lesson. और ये बहुत सामान्य है कि आपने अपनी सीख को नहीं सीखा। Some people will say, lot of recession, you know, और कुछ लोग कहेंगे आर्थिक Wrong. स्थिति बहुत खराब है, lot of stagnation. और यहाँ बहुत लोग फंसे हुए हैं। COVID. और कोविड की परिस्थिति। You learn your lesson. आप अपनी सीख को सीख ले। Tell your neighbor, अपने you पड़ोसी learn को your देखो, lesson. तुम अपनी सीख को सीख लो, Don't blame anyone किसी और को दोष ना ठहरो, because the lesson is repeated. क्योंकि वो पाठ जो है आपको Till फिर you से दोहराना learn the पड़ेगा। lesson. जब तक आप उसे सीख नहीं लेते, Till you learn the lesson is repeated. जब तक वो पाठ आप सीख नहीं लेते, आपको उसे फिर से दोहराना पड़ेगा। Then you blame God. Father, how long I will be here? और You are फिर not giving me promotion. और आप फिर परमेश्वर को दोषी ठहराओगे कि प्रभु कब तक मैं यहाँ पे फंसा रहूंगा, आप मुझे प्रगति नहीं दे रहे। Yes. हाँ। There is no use blaming God.
कोई भी फायदा नहीं है परमेश्वर को दोषी No ठहराकर। use blaming the world. दुनिया को दोषी ठहराकर कोई फायदा नहीं है। This is the rule of life. I am ये talking जिंदगी का 5 कायदा है। rules of life. Okay? जीवन के 5 ऐसे कायदे मैं बता 5 रहा rules हूँ। of life. जीवन के 5 कायदे। So you will repeat the lesson till you learn it. जब तक आप उस पाठ को सीख नहीं लेते, आपको फिर से वो दोहराना पड़ेगा। Why? I will tell you an inside story. Why you need to learn the lesson to go to higher level. और क्यों आपको उस पाठ को सीखना पड़ेगा ताकि आप ऊंचे स्थानों पर पहुंचे। Higher levels means higher devils. और ऊंचे स्थानों पर उच्च प्रकार के ऐसे शैतान बैठे हुए हैं। Higher levels में शैतानी बैठा है। तुमको छोटा शैतानी संभालने के लिए मुश्किल है, तो बड़े शैतान को कैसे संभालेगा तुम? बहुत बड़ा भूत है वो। उसके बीच में तुमको डाला, वो तुमको खा लेंगे। तुम बोलता है मैं प्रमोशन नहीं है, प्रमोशन नहीं है। प्रमोशन अच्छा है, प्रमोशन नहीं है। तुम कुछ सीखने वाला नहीं है, तुम इधर ही रहो, एटलीस्ट जिंदा रहेगा तुम। कुछ लोग हंसने के लिए पैसा देना पड़ता है लगता है आपको। हाँ? खुल के हंसो, हाँ? खुल के हंसो। टेल योर नेबर, लाफ लाउड। अपने पड़ोसी को कहो जोर से हंसो। खुल के हंसो। बी हैप्पी इन लाइफ। अपने जीवन में खुश रहो। इन माई लाइफ, यू नो, मेरे जीवन में आई वॉन्ट टू सी सम पीपल। मैं कुछ I always like to, I like to meet you, I like to see you. मैं आप सभी से मुलाकात करना पसंद करता हूँ। तुमको देखना भी मैं पसंद करता हूँ। तुम्हारा हेयर स्टाइल सभी मैं देखता हूँ। पर एक तरह की लोग को मैं देखना चाहता हूँ। तो कौन मालूम है? खुशी लोग हैं। खुश खुशी। रहने वाले, खुश रहने वाले, हैप्पी पीपल। खुश रहने वाले लोग। Really, I love to see happy. मुझे बहुत पसंद है ऐसे लोगों को देखना। If somebody is very attractive, they are happy people. अगर कोई ऐसे मुझे अपनी तरफ खींचता है तो वो केवल खुश रहने वाले लोग हैं। You need not look beautiful. आप शायद सुंदर नहीं दिखते हो इस दुनिया के मामले में। Many beautiful people are ugly people. और बहुत से सुंदर दिखने वाले लोग सचमुच बहुत ही भद्दे दिखते हैं। The real beautiful people are happy people. और सचमुच सुंदर लोग वही हैं जो खुश रहते हैं। Please understand. इस बात को You समझिए। want to be beautiful, क्या आप सुंदर दिखना चाहते हो you be happy. तो आप खुश रहे Take measures how you can be happy. और ऐसे कदम बढ़ाए जिससे कि आप और अधिक खुश बने। If you are sad, अगर आप दुखी हो you become ugly. तो आप बहुत भद्दे दिखने लगते हो। If you are angry, अगर आप गुस्से रहते हो you become ugly. तो बहुत भद्दे दिखने लगते हो। Yeah. हाँ। If you are sad, अगर आप you दुखी become हो ugly. तो आप बहुत भद्दे दिखते हो। You should be happy. आपको हमेशा खुश रहना है। Children are so beautiful. बच्चे इतने सुंदर क्यों दिखते हैं? Look at the small children. आप छोटे बच्चों को देखिए। My son is saying, Appa, today you don't preach. और मेरा बेटा कह रहा है आज तुम प्रचार I मत asked him, करो। why, darling? मैंने कहा क्यों? Say, you preach long, very long. और क्या तुम बहुत लंबा प्रचार करते हो। This is the conversation when we both were coming. आज हम दोनों we जब were आ रहे थे discussing यहाँ about पर this. तो मुझसे ये बात Who कर रहा should था। preach today? Happy people. खुश लोग। Children are so happy. बच्चे इतने खुश रहते हैं। I really, sometimes, you know, it's worth to have children with you. और ये सच में इसका बहुत अधिक मूल्य है कि अगर आपके पास बच्चे हैं They make you also happy. वो आपको भी खुश कर देते हैं। They talk like this वो ऐसी बातें करते हैं and आपसे they make us so happy. और हमें इतना खुश कर देते हैं। You be happy. आप भी खुश रहे Take efforts to be happy. और ऐसे आप परिश्रम करें कि जिससे कि आप खुश रह सके। Young people, जवान लोग, you are the most beautiful on earth. आप इस पृथ्वी में सबसे सुंदर दिखने वाले लोग हैं। You should never be irritated. आप कभी भी ऐसी परेशान ना हो। You should always be happy. हमेशा खुश रहो। Please be happy. हमेशा खुश रहे। Okay? Devil wants you to be sad. शैतान चाहता है कि आप दुखी रहे। Okay? Are we learning lessons now? क्या हम कुछ पाठ Tell your सीख रहे neighbor, हैं? I'm learning my lesson. आप कहे अपने पड़ोसी से कि मैं अपनी पाठ सीख रहा हूँ। I don't make mistake. I only learn my lesson. मैं कोई गलती नहीं करता हूँ, मैं केवल अपनी पाठ सीखता हूँ। Okay? Your lesson, third truth. A lesson is learned unless you are learning it, you can't go to the next level. और तीसरी बात यह थी कि जब तक उस पाठ को आप सीख नहीं लेते, आप अगले श्रेणी पर नहीं जा सकते। Okay? Four. चौथी बात, Fourth truth.
चौथी सच्चाई, When you don't learn the lesson in the easy way, it becomes hard. जब आप उस पाठ को आसान तरीके से नहीं सीखते तो वो पाठ फिर कठिन होने लगता है। हाँ? पहला वो आसान में आता है तुमको, पहला आसानी, आसान में आता है, उधर ही सीख लेने का। Otherwise, the lesson becomes hard. अगर ये नहीं करोगे तो फिर वो पाठ और कठिन बनते जाएगा। Huh? You will ask me how I know. I know it because I have gone through many hard lessons. और आप पूछोगे कि आप कैसे जानते हो, तो मुझे ये पता है क्योंकि ऐसे कठिन पाठ से मैं गुजर चुका हूं। First only you learn. पहले ही आप सीख लो, फटाक से learn कर दो, so that it doesn't become hard. ताकि वो आपके लिए मुश्किल ना बनते जाए। Okay, let's turn to Proverbs chapter 6, नीति verse वचन, 9 to 11. नीति वचन 6, 9 से 11। Huh? This is only for lazy people, not for us. ये सिर्फ This आलसी is लोगों not के लिए, for हमारे me, लिए not नहीं for है। me. It is only for lazy people. ये सिर्फ आलसी लोगों के बारे में लिखा हुआ है, हमारे लिए नहीं है। ऐसे आलसी लोग मुंबई में नहीं रहते हैं, मैं सोच रहा हूँ। 9. How long you slumber, O sluggard? When will you arise from your sleep? 9 वचन है, आलसी तू कब तक सोता रहेगा, तेरी नींद कब टूटेगी? A little sleep, a little slumber, a little folding of hands to sleep. कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना। Sleep, okay? So shall your poverty come on you like a prowler, and your need like an armed man. तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। Yes. Sometimes when you don't react to many situations in the right way, you have to face a lot of trouble afterwards. कई बार कई परिस्थिति में अगर सही तरीके से आपने बर्ताव नहीं किया तो फिर और आगे बढ़कर बहुत अधिक बड़ी कठिनाई आपके सामने आ सकती है। See, laziness is not a virtue. और ये जो आलसी बनकर घूमना, ये कोई बड़ी अच्छी गुण नहीं है। Huh? Many people think shopping is a virtue. बहुत लोग सोचते हैं कि शॉपिंग करते रहना ये कोई अच्छा बड़ा गुण है, Shopping is not a hobby. और ये कोई बड़ा हॉबी नहीं है। Poor people go shopping. और गरीब लोग केवल ये शॉपिंग के लिए जाते हैं। हाँ? शॉपिंग कौन जाता है? गरीब बनने वाले लोग ना, वो शॉपिंग जाता है। फास्ट बनने वाले फास्ट ऑफन जाता है, वो एवरी वीक जाता है शॉपिंग को। प्लीज अंडरस्टैंड, इस बात को समझ। मेनी थिंग्स आर नॉट वर्च्यूज। कई बातें अच्छे गुण में नहीं माने जाते। Some people they say out of pride, you know, today I slept till 11 o'clock. और कुछ लोग बड़ा घमंड कर कर कहते हैं कि आज तो मैं 11 बजे तक सोया। It's not a virtue any longer. ये कोई बड़े अच्छी गुण की बात नहीं कर रहे हो No, आप। it's a shame. On a शर्म person. आनी चाहिए आपको। Okay? Poverty will come. गरीबी आप पर आ पड़ेगी। On whom the poverty will come? Sluggard, on और- the people who are sleeping. जो सो रहे हैं ऐसे आलसी लोगों के ऊपर। It is not said in Proverbs 6. Again, he is repeating this in Proverbs 24 also. और नीति वचन 24 में भी ये बात फिर से दोहराई है। 24, 34. Your poverty will come like a prowler. Your need like an armed man. तब तेरा कंगालपन डाकू की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। हाँ, डाकू, डाकू कैसे आके सारा ज्वेल्स को लेके जाएगा। डाकू, डाकू आएगा। See, we should understand, poverty will come like a daku. They will come and take everything away. और ये गरीबी एक डाकू के समान आके आपसे सब छीन लेगी। This is very important. That is why many people, when they don't study when they are young, then their whole life is finished. इसलिए कई लोग जब अपने जवानी के समय वो ठीक से पढ़ाई नहीं करते, फिर वो खत्म हो जाते हैं। That's why young people इसलिए जवान लोग, study well, आप अच्छे से पढ़ाई करें, work hard, आप मेहनत करें, do well, अच्छा काम करें, because poverty will not come like an armed robber.
ताकि ये गरीबी एक हथियारबंद डाकू के समान आपके सामने ना पड़ जाए। A wise man will increase. Young people, you increase every day. और एक ज्ञानी व्यक्ति तो बढ़ते जाता है। जवान लोग जो यहां पर है, आप बढ़ते जाए हर दिन। Keep on adding value to you. अपने आप के साथ मूल्य को जोड़ते जाए। What value you have? और कौन सी ऐसी मूल्य की बात आपके पास है? Your beauty can never become your value. आपकी जो खूबसूरती है वो कभी भी आपका मूल्य नहीं हो Your सकती। family can never become your value. आपका जो परिवार है ये आपका कभी मूल्य बनकर नहीं चल सकता। You need to increase your value. आपको अपना मूल्य बढ़ाना है। You need to learn the lesson today. आपको अपना पाठ आज ही सीखना Tomorrow है। the same lesson will become difficult. कल यही पाठ और भी कठिन बनते जाएगा। It will become difficult. वो As days मुश्किल goes होते on, जाएगा। it will become more difficult. और जैसे दिन बीतते जाएगी ये और कठिन बनते जाएगा आपके When you're young, studying is very easy. जब आप जवान हो तभी तुरंत इसे अच्छे से सीख ले। The moment you cross certain age, you can't study. और कुछ उम्र के बाद आप फिर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। When you don't learn the lessons will become tough. जब आप उस पाठ को सही तरीके से नहीं सीख पाते तो फिर वही पाठ और मुश्किल लगने लगता है। Final lesson. और पांचवा और आखिरी Final rule. और कायदा, How to know you have learnt the lesson? कैसे ये मालूम करे कि आपने ये पाठ सीखा है या नहीं? Your behavior will change. आपका बर्ताव जिस प्रकार से आप कर रहे हो वो ये बदलेगा। The day your behavior will change, जिस दिन आपका बर्ताव बदलेगा, you have learnt the lesson. आपने उस पाठ को सीख लिया है। Tell your neighbor your behavior should change. अपने पड़ोसी को कहो तुम्हें जिस प्रकार तुम बर्ताव कर रहे हो इसे बदलना है। धीरे से बोला मार दे. Some people don't like if you say you have to change, they say, hey, कौन बोला तुम चेंज करो? कुछ लोगों को पसंद नहीं है अगर आप हमको उनसे भोकले वाला तुम कौन है यार? उनको आप जब कहोगे तुम्हें बदलना है उन्हें गुस्सा आ जाता है। Every lesson learned reflects in your lifestyle. और जो भी पाठ आपने सीख लिया है ये आपकी जीवन शैली में दिख जाता है। Your lifestyle is आपकी the indicator of the lessons you have learned. आपकी जो जीवन शैली है ये दर्शाता है कि आपने कौन से पाठ सीख लिए हैं। Just observe the person. उस व्यक्ति को ध्यान से देखे, Observe the person. ध्यान से देखे That's why उसे। I observe people. और इसी कारण मैं लोगों को ध्यान से देखता हूं। When you observe a person, you will know what lessons the person has learned. जब आप उस व्यक्ति को ध्यान से देखेंगे आप समझ पाओगे कि इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कौन से पाठ सीख लिए हैं। Sometimes I don't see change for 20 long years. कई बार ऐसे लोगों के जीवन में 20 साल से कोई बदलावट देखी नहीं I है। am waiting when this person will change. मैं राह अभी भी देख रहा हूं कभी ये व्यक्ति बदलेगा। They will be stagnated. और वो ऐसे थम गए हैं अपने जीवन में। Your actions need to change. आपकी जो क्रिया है ये बदलनी चाहिए। How many husbands are in town? कितने पति है इस जगह पर? You need to change. आपको बदलना है। Huh? Yeah. How many wives are there? कितनी पत्नियां यहाँ पर बैठी हैं? You need to change. आपको बदलना है। You can't be the same. आप उसी प्रकार नहीं बैठ सकते। We have to change. आपको बदलना है। Yes. Why we have to change? हमें क्यों बदलना है? Because if we don't change, it will become more difficult tomorrow. क्योंकि आज अगर हम बदले नहीं तो कल ये और भी कठिन बनने वाला है। If you change, अगर हम बदल you ले will be promoted. तो तुम्हें प्रगति होने वाली If है। you change, you will be promoted. अगर तुम बदलते हो तो तुम अगले श्रेणी पर जा If सकते you are हो। reacting the same way, अगर आज भी उसी परिस्थिति में हो for after 15 years, I am reacting the same way. और 15 साल के बाद भी अगर उसी प्रकार में बर्ताव कर रहा हूं, Something is not right. कुछ तो बात ठीक Okay, let's turn to Proverbs chapter 19, verse 11. नीति वचन 19वां अध्याय 11वां वचन। Yeah, discretion of a man makes him slow to anger, and it is his glory to pass over a transgression. जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको सोहता है। What makes you slow to anger? आपको विलंब से क्रोध कौन कराता है? Some people are very fast to anger. कुछ लोग बहुत जल्दी गुस्से हो जाते हैं। How many of you? कितने लोगों को यह परेशानी है? One day one young girl and boy were walking in front of me. और एक दिन एक जवान लड़के और लड़की मेरे सामने से ही चल रहे थे। Okay? One of them said, "Do you know I get angry very fast." तो उनमें से एक कहने लगा कि तुम्हें पता है कि मैं बहुत जल्दी गुस्से हो जाता हूँ। So immediately I peeped between them and said, "इसको छोड़ दो." तो तुरंत मैंने उनके बीच में अपनी नाक डाली और कहा कि भाई इसको जल्दी छोड़ दे।
I didn't do. I was thinking to do, and I मैं was ऐसे केवल सोच रहा था, मैंने ऐसे किया नहीं. Huh? Discretion of a man makes him slow to anger. जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है. Discretion. Young men, you need to be discreet. You और should जो learn जितने discretion. जवान लड़के हैं आपको बुद्धि से चलना है. Men get very angry very fast. बहुत जल्दी वो गुस्से हो जाते हैं. आजकल women are also equally angry. और आज की स्त्रियां भी ऐसे ही गुस्से जल्दी हो जाते हैं. When men get angry, they shout. जब आदमी गुस्सा करता है वो चिल्लाता है. Woman get angry, she cries. और स्त्री अगर गुस्से हो जाती है तो रोने लगती है. But discretion will not allow you to लेकिन- shout and cry. लेकिन अगर बुद्धि आप में है तो वो आपको चिल्लाने या रोने में आपके साथ नहीं रहेगा. Please understand. इस बात को समझे. Discretion is very important. और ये बुद्धि का होना बहुत बहुत जरूरी है. Discretion comes when you learn your lesson. और ये बुद्धि तभी आती है जब आपने अपनी पाठ को सीख लिया है. All the time people are fighting. हमेशा वो लड़ते रहते हैं. All the time people are angry. हमेशा वो गुस्से में रहते हैं. That means they are all no discretion. No, उसका अर्थ है उनमें कोई बुद्धि नहीं है, वो कभी ऊपर नहीं आ सकेंगे. They can say I will become a star. Who will give you any वो star? कह सकते हैं कि मैं बड़ा स्टार हूं, लेकिन कौन उनको भाव देने वाला है? You can lose the opportunities you have. आप अपने जीवन के कई मौकों को इस प्रकार खो देते हैं. One word of anger will make you to lose your job. क्रोध का एक शब्द आप अपनी नौकरी को खो सकते हो. It can lose a big business. और बड़ा एक व्यापार आप खो सकते हो. Anger is such a deadly enemy of us. क्रोध इतना बड़ा एक दुश्मन है हमारा. When you learn anger inside your home, you will be easily angry outside your home. जब आप घर में इतना गुस्सा होना सीख लेते हो तो आप बाहर गुस्सा होना आसानी हो जाती है. You are going to lose. आप केवल हार पाने वाले हो. Discretion makes you slow to anger. बुद्धिमान से जो बुद्धि से जो चलता है वो विलंब से क्रोध करता This is है. a year of God's glory. और ये वो साल है परमेश्वर की महिमा का. It is glory to overlook a transgression. और ये महिमा की बात है कि आपने किसी अपराध को भुला दिया है. Some people are like, they are very like policemen. और कुछ लोग ये पुलिस वालों के समान होते हैं. ये क्या गलती किया, वो क्या गलती किया. चर्च में आता है गलती देखने के लिए. I tell you, to see the mistake is shameful. किसी To की overlook a mistake is glory. किसी की गलती को देखते रहना ये शर्मनाक बात है, लेकिन उसके अपराध को अनदेखा कर देना ये महिमा की बात It's है. glory to ये- overlook a ये transgression. महिमा की बात है अगर आप अपराध को अनदेखा कर देते हो. Let's overlook each other's mistakes. हम एक दूसरे की गलती को अनदेखा कर ले. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी से overlook my कहे, mistakes. मेरे गलतियों को तू अनदेखा कर देना. Overlook. Don't look at my mistakes. मेरे गलतियों की तरफ मत देखते रहना. Please be more glorious. और महिमा से भरे हुए व्यक्ति बनो. Let us not talk about any mistake. हम किसी गलती के बारे में बात करते ना रहे. Huh? Let us not talk about other people's mistakes. दूसरों की गलती के बारे में बात करते ना Let रहे. us learn the lesson. हम अपनी सीख को सीख ले. First of all, God wants us to really change. पहली बात तो परमेश्वर चाहता है कि हम सचमुच बदल जाए. Hallelujah. Let's read a beautiful verse. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. दूसरी कोरिन्थियों की पत्री 5:17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. और- All things have passed away. Behold, all things have become new. यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई. If anyone is in Christ, अगर कोई भी मसीह में है, if anyone becomes a Christian, अगर कोई भी ऐसा नहीं मसीह लिखा है। बनता है. क्या ऐसे लिखा है कोई ईसाई धर्म में जुड़ता है? if anyone is in Christ, अगर कोई भी मसीह में है, मसीह के अंदर है, अगर कोई मसीह के अंदर है, मसीह से भरा हुआ है, is a new creation. वो एक नई सृष्टि है. एक नई सृष्टि. नई सृष्टि है. सृष्टि, वेरी नाइस नेम, सृष्टि. बाइबल में 2 ही बार ये सृष्टि आया है. पहली बार गार्डन ऑफ ईडन में, और ईदन के वाटिका में पहली बार यह शब्द Adam was a new creation. आदम एक नई सृष्टि था. After Adam, आदम के बाद it is me. वो मैं हूं.
I am the new creation. मैं वो नई सृष्टि हूं। See, today, तो आज you are the new creation. आप एक नई सृष्टि हो।